ہم سنی بریلی والے ہیں، ہم سنی بریلی والے ہیں، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرہ لگانے والے ہیں، ہم سنی بریلی، ہم سنی بریلی والے ہیں، ہم سنی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت، میں ایک مفتی صاحب کو کال کر رہا ہوں اور عوام اہل سنت کو ان دیوبندیوں کی ہٹ دھرمی، ان دیوبندیوں کی مکاری دکھانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، کال کہ کریں آپ۔ اپنے عقیدے کو یہ لوگ کس طرح چھپاتے ہیں اور بھولے بھالے مسلمانوں کو کس طرح بہکاتے ہیں۔ یہ ان حضرات سے کبھی بھی بات نہیں کرتے ہیں جو دین کے تعلق سے کچھ نالج رکھتے ہیں۔ جن کو نالج ہوتی ہے ان سے بات نہیں کرتے، اور جن کو نالج نہیں ہوتی تو ان سے بہت بات کرتے ہیں، اور دین کے نام پر سیدھا سادہ میں بولوں لفظ، یہ ان کا ایمان لوٹتے ہیں۔ نماز کے نام پر ان کا ایمان لوٹتے ہیں۔ میں کال لگانے جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ لائن پر رہیں، اور میں کسی ایک موضوع کے تعلق سے ان سے بات کرنا چاہوں گا، اور کہوں گا کہ کچھ لوگ میرے ساتھ لائن پر ہیں اور مجھ سے اس طرح کی بات ہو رہی تھی۔ میں اپنا ایک ٹاپک بناؤں گا، اور اس لیے کہ ہمارے جو سنی بھائی نہیں جانتے تو وہ بھی جان لیں کہ یہ لوگ کس طرح جو ہے پیچھا چھڑاتے ہیں، اور پیچھا چھڑانے کی وجہ یہی ہے کہ ہاں واقعی ان کے علماء نے، ان کے بزرگوں نے، ان کے جو بڑے جو اکابر گزرے ہیں، واقعی انہوں نے غلطیاں کی ہیں، کفر کیے ہیں، اور ایک کفر کا پورا انبار جو ہے لگا دیا ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، لائن پہ لیتا ہوں میں۔ السلام علیکم۔ جی خیریت ہے؟ الحمد للہ۔ مفتی صاحب، میرے ساتھ کوئی صاحب لائن پر ہیں، میری بات چل رہی تھی ایک صاحب سے، تو کچھ جی بات ہو رہی تھی ہماری، میں ان کو لائن پہ جوڑ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی جی، میرے ساتھ یہ ایک بھائی ہمارے لائن پر ہیں، اور ہماری ان لوگوں سے بات ہو رہی تھی حضور کے خیال کے تعلق سے، کہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا کیسا ہے۔ حضور کے خیال لانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یا گناہ ہوتا ہے، یا شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں نے ان کو سمجھایا اور میں نے ان کو حوالہ بھی دیا، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ سے بات کر لوں۔ تو ایک کتاب میں نے پڑھی تھی صراط مستقیم، اسی کا میں نے ان کو حوالہ بتایا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں مفتی صاحب کو، عالم دین صاحب کو میں لائن پہ لے لوں اور ان سے اس کی کچھ وضاحت کرانے کی کوشش کروں۔ تو کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ اس وقت تو میں مصروف ہوں دوسرے کام میں۔ بس 5 منٹ دے دیجیے مفتی صاحب۔ 5 منٹ میں تو یہ موضوع نہیں ہوگا، آپ کو بھی معلوم ہے۔ جی
5 मिनट पर तो 5 मिनट में तो इस मौजू पर बात नहीं हो पाएगी, आपको भी मालूम है ये बात। अच्छा, बस इतना बता सकते हैं कि ये सिराते मुस्तकीम में ये बात लिखी हुई है या नहीं? किसकी है सिरात मुस्तकीम? आप देखिए मुफ्ती हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, और मैं अपने सामने वालों को समझा रहा था कि देखिए उलमाए देवबंद की किताब में ऐसा लिखा हुआ है। आप क्या है? देखिए मैं तो एक बहुत गुनहगार इंसान हूँ और एक अदना सा तालिबे इल्म हूँ, ठीक है, मगर ये किताब मैंने पढ़ी है और मेरे पास भी है। तो इनसे मेरी बहस हो रही थी। मैंने तालिब इल्म है ना जी, अदना तालिब इल्म है ना आप? हाँ भाई, अदना ही हूँ। तो अदना तालिब जर्रा हूँ। दूसरों से बहस क्यों कर रहे हैं आप? बहस नहीं, मैं उन्हें समझा रहा हूँ कि उलमाए देवबंद के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने, सुनिए, अभी तो आपने कहा कि बहस चल रही थी बोलकर। हाँ हाँ, मैं उनको समझा रहा था, तो मेरी तरफ से ये था। अदना तालिब इल्म समझा रहा क्यों था? मेरे पहले ये सवाल का जवाब दीजिए। मेरे आका ने फरमाया कि अगर दीन की कोई एक बात जानते हो तो अपने दूसरे भाई तक पहुंचा दो। तो यहाँ दीन की बात चल रही है, तो दीन में ये भी है कि काफिर से दूर रहो। अच्छा जी, तो उलमाए देवबंद के बुजुर्गों ने जो कुफ्र किया है उसको बताना मैं जरूरी समझता हूँ। हाँ, तो बता दिया ना आपने। नहीं, वो ये कह रहे हैं हाँ हमारे किसी आलिम से गवाही दिलवा दो, क्या ऐसा लिखा है, हमने तो नहीं देखा। तो मैंने इसलिए आपको लाइन पर लिया। अदना तालिब इल्म साहब, अदना तालिब इल्म रहते जो है उलमाए देवबंद का कुफ्र पकड़ने के लिए चले हैं, बराबर। कभी अहमद रजा खान साहब का भी तो कुफ्र तलाश कर लिया होता उनकी किताबों में। जी, साबित करें। और अदना तालिब इल्म, तुमको शर्म आनी चाहिए। आज के जमाने में ये सब कुफ्र खेलते बैठे हुए हो। साबित करें। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का कुफ्र साबित करें। तलाश कर ले, खुद ब खुद मिल जाएगा। अदना तालिब इल्म है ना यार, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो और मैं कह रहा हूँ कि साबित करो, तो साबित भी नहीं कर पा रहे हो। अदना तालिब इल्म में तुम्हारा जवाब क्यों दूं? हाँ, तुमने जब कहा है कि एक अदना तालिब इल्म हो, दीन का जो है अदना सा शागिर्द हो, तो अदना लोगों को बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती। हर चीज का एक लेवल होता, समझे? अदना तालिब इल्म और चले हैं बहस करने के लिए। हेलो नूर हसन भाई जी, मैं जरा बोलना चाहूंगा। अगर कोई इंसान कम जानता हो तो वो किसी बड़ी आलिम से पूछे तो इसमें गलत क्या है? उसे गलत छोटा बता के उसे जवाब नहीं बताना चाहिए जी? अगर वो छोटा है, अगर पूछ रहा है तो उसे बताना चाहिए। तो पूछने का ये अंदाज होता है? अरे भाई, अदना ही पूछता है। आपको गाली तो दी नहीं है। वो पूछ रहा है या वो अपनी जिहालत के ऊपर सामने वाले? नहीं, मैंने सबूत के तौर पर आपको कॉल लगाया है, सबूत के तौर पर। क्या आपकी तरफ से कुछ जवाब मिलेगा तो मैं इनको मुतमईन कर सकता हूँ। किस बात पर मुतमईन? तुम अपने इल्म से मुतमईन करोगे या सामने वालों के जवाब से मुतमईन करोगे? भाई आप देवबंदी है, किताब देवबंद की लिखी हुई है और आप देवबंद के आलिम है, तो आपको ज्यादा वजाहत करने में आसानी होगी। अरे बाबा, देवबंद तक मत जा बाबा, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। मैं ये पूछ देखिए, अदब के दायरे में रह के बात कर रहे हैं हम, आपसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, बहुत अदब के दायरे में रह के बात कर रहे हैं। तो मैं भी तो अदब ही तो बाबा बोलना नहीं, आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो गलत किया है, पीछे वाला। कौन सा लफ्ज? ये रेते का वर्ड इस्तेमाल ना करें। मैं आपसे अदब से बात कर रहा हूँ। हेलो मिस्टर उर्दू। वही हेलो भाई, हेलो मत करो। मुझे ये बताओ कि मौलवी इस्माइल दहलवी की किताब में ये बात लिखी है कि नहीं? देखिए, लड़ाई नहीं, बिल्कुल लड़ाई नहीं। सुनिए, लड़ाई झगड़ा फसाद बिल्कुल नहीं, प्यार मोहब्बत से बात करें। मैंने जो पूछा उसका जवाब देंगे कि नहीं? देखिए जनाब, ये है उलमाए देवबंद की हकीकत। अरे हरे बाबा, उलमाए देवबंद की हकीकत है क्या है? मैं ये पूछ रहा हूँ, उर्दू जानते हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे का क्या मतलब होता है उर्दू में? अरे ये अरे तरे मुझे मत सिखाओ, ठीक है? मैं भी तुझे अल्लाह तरह बोलूं क्या? मेरे सवाल का जवाब। तुझे मेरी मीठी जुबान अच्छी नहीं लग रही बे? मेरे पहले तुझे मेरी मीठी बोली अच्छी नहीं लग रही है? मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ, अरे का क्या मतलब है? उर्दू जानते हो क्या पूछा? अबे मुफ्ती, मैंने तुझसे ये पूछा है कि मौलवी इस्माइल दहलवी की किताब में आ गया असलियत पे आ तो गया।
असलियत मैं जब अदब से बात कर रहा हूँ, तुझे जब अदब हजम नहीं हो रहा है, जब तुझे घी हजम नहीं हो रहा है कुत्ते की तरह, असलियत पे आ गया, असलियत पे आ गया। मुझे मालूम है, ये सब पहले बोल चुका हूँ मैं। हाँ, ये रिकॉर्ड पे रखना, ये बात ये रिकॉर्ड है मेरे पास। मुफ्ती बोल रहे हैं ना, ठीक है। अरे जरूर जरूर जरूर, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रखना। असलियत पे आ गया, देखो। तो ठीक है, उस किताब की अरे भाई, जब तू अदब सही बताया इसमें, तू जब अदब नहीं कर रहा है तो मैं तुझे तेरा अदब करूंगा। जब मैं अदब से बोल रहा हूँ और प्यार मोहब्बत से बात कर रहा हूँ, तो तुझे भी चाहिए ना सलीके से बात करे। तो ये तेरा अदब है, तू कहना तेरा अदब है, अबे कहना तेरा अदब है। हाँ, अरे वाह, मैं अगर कह दूं, छोड़िए नूर हसन भाई, इन बातों को छोड़िए, जो किताब का हवाला है इनसे पूछिए वो सही लिखा है क्या। अच्छा चलिए वो बताइए। मैं इनको समझा रहा था, बता रहा था कि फला किताब में ऐसा लिखा हुआ है, तो ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं, बस इतना हाँ ना में जवाब दें। मैं तो तेरे सवाल का जवाब इस वजह से नहीं दे सकूंगा। अरे तेरी पूरी जरूरत जवाब नहीं दे सकती इस नूर हसन का। अरे नूर हसन कौन है रे तू, झांडू? अरे जाहिल आ गया गालियों पे। अरे नूर हसन है रे तू, झांडू? गाली तो तू शुरुआत करा था। अरे यार मुसलमानों, ये है तुम लोगों को यार, ये है इन जमातियों की मेहनत के नतीजों की हकीकत, ये है इन चिल्ले के पिल्लों की हकीकत। ये जमात में अपनी माँ बहनों को ले जाके जिना करा के साले पैदा होते हैं, और ये फिर इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं हरामखोर। आ गया ये सुअर की नस्ल का अपनी असलियत से। अबे नस्ल की नाजायज औलाद, जब तुझे इज्जत राशि नहीं है तो फिर क्या किया जाए। अरे नूरुल हसन, तेरे घर में माँ बहन नहीं है? अरे मेरे घर में तो सब है। ऐसा होता है क्या? अरे मेरे घर में तो सब है हरामखोर। तुझे डर है कि अगर मैंने ऐसा वैसा बोला तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मेरे बुजुर्गों की इज्जत नीलाम हो जाएगी। तू तेरे घर में माँ बहन है या तू कहीं कोठे पर जन्म लिया नूरुल हसन? सहारनपुर की जामिन अली जलालाबादी की जो रंडिया थी, तो उन्हीं में से पैदा है क्या? अच्छा, कौन सी रंडी की औलाद है तू? हाँ तो बता ना, कौन सी रंडी की औलाद है तू जामिन अली जलालाबादी की? तो वही तो पूछ रहा हूँ ना तुझसे। देखो फिरासत भाई, मैंने पहले ही कहा था कि इन हरामियों में इतनी जुर्रत नहीं है जो इस गुनहगार के किसी भी सवाल का सही से जवाब दे दें। ये लड़ाई दंगा फसाद ये सब चलता आ रहा है, और ये हरामखोर उनसे कह रहा था कि इस चक्कर में ना पड़ो। अबे हराम के पिल्ले, इस चक्कर में ना पड़ो रे। फिरासत अली, तूने लिया ना तेरे मौलवी की जबान। अरे साले सुअर के पिल्ले, जो मुफ्ती इतना बेकार निकलेगा मुझे पता नहीं था। अच्छा, अब आपको यकीन हो गया ना फिरासत भाई? ये इस हरामी की किताब में लिखा हुआ है, समझे? इस हरामी की किताब में ये लिखा हुआ है। वो तो इनकी गलाजत से पता चल रहा है, इनकी बातों से पता चल रहा है। बराबर फिरासत, जब ये वायरल हुए ना, सुनने वाले खुद अंदाजा करेंगे। बिल्कुल सुनेंगे इंशाल्लाह, और अंदाजा भी लगाएंगे। ये इसकी बातों से पता लग रहा है, इल्म नहीं है, और मुफ्ती किसने? ये जाहिल है साला, इसको मुफ्ती के मीम से भी वाकफियत नहीं है। बिल्कुल सही कहा तूने, बिल्कुल सही कहा तूने। और तू जो है अदना तो अपने आप को मुफ्ती क्यों कहलाता रहा, जाहिल कहीं के? किसने कहा रे अपने आप को मुफ्ती? अबे हरामखोर, मुफ्ती नहीं कहलाता तू? अबे किसने कहा रे? मैंने मुझे अपने आप को मुफ्ती कहा? अच्छा ये बताइए, ये किताब जो देवबंद की किताब है ना, ये हाँ देवबंद की किताब है, मौलवी इस्माइल देहलवी की किताब है, और ये वहाबी और देवबंदी दोनों का बाप है। अरे फिरासत, बात मत करो, वहाबी देवबंदी मौलवी से कहो जो पहले दोनों इसकी औलादे हैं। मसले पे बात करिए ना, आप मेरे नाम से बात ना करें, मेरी मसले पे बात करें। असलियत तेरे मौलवी की जबान जब चल पड़ी है। अबे जाहिल, जवाब दो ना। तो तू सलीके से बात भी नहीं करेगा ना? अभी लाइन पे आ जा, चल अभी पटरी पे आ जा। अरे अब सलीके से बात कर, चल अब सलीके से बात कर, आजा। अरे वो नस्ले हराम, चल अब सलीके से आ जा। तू कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो नस्ले तुम्हारे जैसा हरामियों का यही मिशन है कि किसी से सही से बात ना करो, फंस जाओ तो गाली दे के भाग जाओ, बदतमीजी कह के भाग जाओ, कुछ भी कह के भाग जाओ, राह फरारी करो, समझा? तेरी पूरी जमात देवबंद को मेरा चैलेंज है। और देख तो मेरे नाम से तेरे मुफ्ती घबराते हैं देवबंद के। मुफ्ती राशिद का नाम सुना है तूने, जो दारुल देवबंद के दारुल इफ्ता में बैठता है? हाँ वही ना, तेरा बाप जो है। तेरा बाप है, तेरा बाप दारुल देवबंद के इफ्ता में बैठता है, वो दारुल इफ्ता में। राशिद ना, जिससे मेरा नाम लेते उससे साले पैसा कर देगा खड़े खड़े। नहीं वही मुफ्ती राशिद ना, जिसके नुस्खे से तू पैदा हुआ, जिसके नापाक औलाद तू है। अबे जिना की पैदावार, बहुत ही बड़ा हरामी। और तू ये सोच रहा है कि इस ऑडियो को गंदा कर दे, तो ये ऑडियो चलेगी, समझा? ये ऑडियो चलेगी और तेरी गंदगी भी देखेंगे लोग। बिल्कुल चलेगी, समझा बे हरामी? पूरी दुनिया देखेगी। इस ऑडियो को लोग सुनेंगे, देखेंगे
کہ دیوبند کا کتنا بڑا حرامی دیوبندی ہے بھائی کہ جواب ہی نہیں دے پایا. میرے پاس جواب نہیں ہے. چل اب تیرا کال کٹ کر رہا ہوں, اس کا کام ہو گیا. جی جو چینل ہے یوٹیوب چینل ہے نا, ہاں یوٹیوب چینل ہے, اس کی پک نکال کے اسی آڈیو کے ساتھ میں لگانا ہے اس کی. بالکل بالکل, اس حرام خور کا فوٹو نکالو, اس حرام خور کے فوٹو کے ساتھ ڈالوں گا. تیرا ابا ہوں, اب خود جو ہے فوٹو لگا دوں گا. فوٹو نکالو اس حرام خور کا وہاں سے. بالکل بالکل. ارے لا فوٹو بھیج مجھے اسی نمبر پہ. ارے بھیجتا ہوں, بالکل میسج کر بھیجتا ہوں. بھیج جلدی. دیکھو بھیج یہ ہے مت کر کے دکھا. کیڑا بریلی گندی نالی کا کیڑا آیا, اس کی زبان. ارے وہ تو تو ہی ہے, وہ تو تو ہے نورحسن بھائی. ہاں اس سے رسول اب یہ بات کرو, اس میں ہم نے کتاب کا یہ حوالہ آپ نے پیش کیا, یہ جواب نہیں دے پائے اور یہاں کا آگے ان کی کال کاٹ دو. دیکھیں حضرات, میں نے آپ کو شروع میں ہی سمجھایا تھا, بتایا تھا کہ میں دیوبندیوں کی کچھ حقیقت منظر عام پر لانا چاہتا ہوں اور میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ دیوبندی کتنے بڑے مکار ہوتے ہیں, کتنے بڑے شیطان ہوتے ہیں, اور یہ جانتے ہیں کہ ہاں ہمارے شیطان بزرگوں نے اللہ رسول کی شان میں توہینیں کی ہیں, اسی لیے یہ ہم سے کسی بھی توہین پر بات نہیں کرنا چاہتے. یہ جانتے ہیں کہ ہاں واقعی گستاخی ہے. اگر یہ نہیں جانتے تو پھر ہم سے یہ بات کرتے, بحث کرتے. اور میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ جو جانتے ہیں وہ بات نہیں کرتے اور جو نہیں جانتے ہیں وہ مجوری کرتے ہیں. دونوں میں سے ایک بات ضرور رہتی ہے, اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دھوکے میں ان لوگوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں, مگر گستاخی پتہ چلنے کے بعد الحمدللہ توبہ بھی کر لیتے ہیں, اور بہت سارے بھائیوں نے الحمدللہ توبہ کی ہیں. الحمدللہ تو توبہ کراتے رہا, اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تجھے سے چٹوں سے منہ لگاتے, سمجھا. ابے کی ناجائز اولاد, ابھی ارے ناجائز اولاد تیرے جیسے حرامیوں کے تو میں خود منہ نہیں لگتا ہوں, مگر تیرا بڑا چرچا سنا تھا, تیرا بڑا نام سنا تھا, تو بہت بھونک رہا تھا اپنے یوٹیوب میں, تو اسی لیے میں نے سوچا لاؤ اس حرامی کو میں کال کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں یہ کتنا بڑا علم رکھتا ہے. اسی لیے میں نے تجھے کال کیا تھا کہ اس شیطان کی پنگی میں بجاؤں گا, اور تیری ہوا نکل گئی, تیری ہوا نکل گئی شروع میں. جاہل کہیں گے. اب میں تیرا کال یہی کٹ کرتا ہوں اور عوام اہل سنت کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھو یہ حرامی اس طرح کے غدار ہوتے ہیں.